when you speak to 100 kids, definitely you get different perspectives or different ideas, different opinions from each one of them. We sometimes forget, we as parents and teachers sometimes just completely forget, वो बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा है. कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं. How do we help our kids? अब एग्जाम्स आने वाले हैं मई के महीने में. I am going to tell you a few tips which will help you towards the tail end of your preparation. परीक्षा सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं होती है. ये आपके धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक भी होती है. कई बच्चे बोल के करते हैं, कई घूम घाम के पढ़ते हैं, कई म्यूजिक लगा कर पढ़ते हैं. जो एनवायरनमेंट आपको पसंद है, पिक अप दैट एनवायरनमेंट. सोइएगा जरूर, 6 से 8 घंटे जरूर सोइएगा. 1 month before the exam, your brain does need that rest. नमस्कार, we meet again. आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूंगी. आप सबके प्यार के लिए, आप सब ने जो मुझे इतना प्रोत्साहन दिया है अनेक तरह के विषयों पर बात करने के लिए, खास तौर पर जो हमारे बच्चों से जुड़े हुए हैं. बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सब तक पहुंच पाती हूं और ऐसा लगता है मानो कुछ समझा पा रही हूं और शायद मेरी बात आप सब तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच ही रही है. चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं. हमारे ही बच्चों से रिलेटेड, as teachers and parents, which I had mentioned right from the beginning of all my videos, how do we go about training, supporting, motivating them? बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, for parents and then for your parents and then probably for all the teachers around. And why I chose this topic today is because I've been closely associated with the entrance exams, because we get students immediately after the entrance exams into our first year BDS. इन बच्चों से काफी बातें करती रहती हूँ मैं, तो मुझे आइडिया मिलता है कि what was the mindset, what was the trauma or how do I put it? I would put it like the struggles, the challenges, emotional जो ये अपने अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं. सो ये सारी चीज़ों का जो ब्यौरा है, ये मुझे फर्स्ट हैंड मिलता है इन बच्चों से. इसीलिए मैं हर एक बच्चे से बात करती हूँ. करीब 100 का एडमिशन होता है in every dental college. Some of them have 50. So when you speak to 100 kids, definitely you get different perspectives or different ideas, different opinions from each one of them. And when you get these ideas, you realize कि हर घर का बैकग्राउंड कितना अलग है, हर घर में अपब्रिंगिंग कितनी अलग है, हर घर में माँ बाप की सोच कितनी अलग है. मैं वो एनालिसिस करती रहती हूँ, तब मैं जान पाती हूँ कि हाँ, बच्चों को हम इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं just before the exams. See now, I was talking as to the students who've given the exams, right? I mean, my own child gave NEET, and I was very much involved in her preparation, and that gave me an idea. We sometimes forget, we as parents and teachers sometimes just completely forget, वो बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा है. कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, मानती हूँ, लेकिन कई हैं देखिए जो करते हैं. So what is the best? What is our best we can give them right 1 month before the exam? Because this is the time, as I was talking last time, this is the time when they are terribly anxious. बच्चा कैसा feel करता है? It's painful. Sometimes I would say it's painful to see the child struggle. It's like a necessary evil, you know. We just have to go through this grind, and looking back retrospectively, how when I spoke about students not responding very well to the entrance exams. Now, this concept of entrance exams, when we absorb it or when we understand it or when we take it as as a social standing or it's an accepted norm in our society, now that we are in that loop, how do we help our kids? अब एग्जाम्स आने वाले हैं मई के महीने में. इसका मैंने बहुत डिटेल में एक डेटा तैयार किया है, पढ़ा है कि कब
कौन से एग्जाम होते हैं, पेरेंट्स को कैसे एनालाइज करें चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी. दैट इज फॉर पेरेंट्स. अब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है टीन ब्रेन, जो मैंने स्ट्रेस एंड एंजाइटी वाले वीडियो में लास्ट टाइम आपको बताया था. दैट टीन ब्रेन इज वेरी रेजिलियंट ब्रेन. रेजिलियंट माने कि लचीला. लचीला माने आप मान के चलिए जैसे कोई चीज होती है ना भाई, आपने उसे पुश किया, जेली, समथिंग लाइक जेली, राइट? सो जेली विगल्स माने हिलती है एंड देन gets back into shape, right? So it moves this way. How kids love jellies. When we were kids, we used to love jellies, right? अब तो शायद कम मिलती हैं. तो वो जितनी लचीली होती है ना, वो it comes back to square one. Or probably you can reshape it. आप जहाँ उसको ढालेंगे, वो वही shape ले लेगा. So teen brain, very resilient brain. In depth, we will be dealing with this in our next few coming videos. As of now, I want to focus on the upcoming exams, the entrance exams at all India level, be it NEET, CUET, IITs, other engineering colleges at different state and local levels. There are some held at, I'm not very sure about the engineering ones. Me being a medico, तो मेरा रुझान थोड़ा मेडिकल साइड की तरफ ज़्यादा रहता है. Pardon me for that. इंजीनियरिंग के मैं कुछ ही जानती हूँ. कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. और एक और होता है, देयर इज अनदर न्यू वन विच इज कम, इट्स कॉल्ड आइसर, IISER, बिकॉज आई वांटेड टू फाइंड आउट द फैक्ट्स अबाउट दिस कोर्स टू फॉर माय चाइल्ड. I will be telling you more about this in my later videos. So, ये जो एग्जाम्स आ रहे हैं, अब देखिए, I think last year probably NEET was on the 5th of May. I guess it's on the 4th this time. I'm not sure. I'll have to check. It's a Sunday. It's always on a Sunday, usually in the afternoons. It starts probably 2 to 5. All these memories are quite fresh in my mind. And all I remember is, I'm not boasting or I'm not saying that हर पेरेंट को ऐसा होना चाहिए. हम सबके अपने अपने तरीके हैं. बट मैं आप सबसे चाहूंगी, फर्स्ट पेरेंट्स एंड देन टीचर्स, जस्ट स्टैंड बाय योर चाइल्ड. जस्ट स्टैंड बाय योर चाइल्ड, स्पेशली एट दिस टाइम, चाहे उसने 2 साल पढ़ा हो या ना पढ़ा हो. ओके? And for children, I would want you also to listen to this video. Why? Because I am going to tell you a few tips, a very basic tips which will help you towards the tail end of your preparation. ये आपको साल भर, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से बताया जा रहा होगा. बट क्या होता है ना, जब आपको कोई आखिरी में एक सपोर्ट दे देता है, एक लास्ट पुश, एक कहते हैं ना वो जो रिले रेस जब हम दौड़ते हैं तो एक लास्ट लैप, your last runner has to be a very fast runner. They say that आप beginner को बहुत अच्छा रखिए और जो last lap दौड़ेगा आपका, उसको बहुत तेज रखिए. तो ये आपका एक last lap है of the entrance exams. So be very calm, very inspired, very motivated. These are not just words, you know. I'll make you understand these. How do you feel all this? ये फीलिंग आपके अंदर आएगी कैसे? शब्द तो हम कह देते हैं भाई, मोटिवेटेड फील करिए, इंस्पायर्ड करिए. आप सबसे पहले रिक्वेस्ट टू ऑल चिल्ड्रन, प्लीज कम्युनिकेट, प्लीज बी इन टच विद योर पेरेंट्स हाउ एवर यू आर फीलिंग. आपको इरिटेशन हो रही है, कीप इन टच विद देम. यू आर फीलिंग हंग्री, कीप इन टच विद देम. सेकेंड थिंग, योर माइंडसेट, राइट? Your inspiration and your strategies. So SIM, जैसे फोन में सिम डलता है, तो ये मेरे टेक्निक्स हैं, सिम टेक्निक. स्ट्रैटेजी, इंस्पिरेशन एंड माइंडसेट. आप इस पर फोकस करिए बच्चों. अभी इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. एंड एज पेरेंट्स मैं चाहूंगी आप कुछ तवज्जो दें मेरी इन बातों को. आप भी अगर इसे समझेंगे तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाएंगे. बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल फेज, प्रॉब्ली द लास्ट 20 days, और या कह लें महीना भर, कुछ एग्जाम्स के लिए 1.5 महीना.
कुछ एग्जाम्स जून में होंगे, जुलाई तक ये आकर खत्म हो जाते हैं, प्रॉब्ली द एंड ऑफ जून और द बिगिनिंग ऑफ जुलाई. सो इट्स लाइक आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं इम्तिहानों की. यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगी, परीक्षा सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं होती है, ये आपके धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक भी होती है. ये एग्जाम्स अभी के लिए नहीं है, एग्जाम्स आर फॉर लाइफ. So it's going to go on and on and on. So exams are a test of your character. So घबराएं नहीं आप इससे. आप ये 3 techniques, very simple techniques I'm telling you. Towards the end it really works. I try it on all my students. पहली वाली को कहते हैं, ये strategies हैं. सबसे पहली Pomodoro technique. It's called a Pomodoro technique. Pomodoro एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टमाटर. बहुत सिंपल सी टेक्निक है. देखिए इसमें करना क्या है आपको बच्चों, शायद आपने जाना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत कॉमन सी चीजें, लेकिन इसको अप्लाई करिए आप, और अभी तो जरूर करिए. यू रीड फॉर, क्योंकि अब क्या है कि नाउ यू कांट कीप टेकिंग ब्रेक्स. नाउ इट हैज टू बी कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रिवीजन, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग पेशेंस, इजंट इट. आपको लगता है कि भाई अब कितनी देर पढूं, अब मन नहीं कर रहा है, 2 साल से तो पढ़ता ही आ रहा हूं, तो अब छोड़ देता हूं. टुवर्ड्स द एंड वी ऑल स्टार्ट गिविंग अप. ये गिविंग अप से मैं आपको बताना चाहूंगी, देयर इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी बेस्ड ऑन दिस पोमोडोरो टेक्निक ओनली. आपने क्या करना है, आधा घंटा पढ़ना है, हाफ एन आवर. जस्ट पुट एवरीथिंग अवे, पुट योर फोन अवे, all the distractions away. You can ask your parents to be quiet. You can go sit in some corner and just that half an hour. And this has to be done continuously till you appear for all the exams, right? And it's very effective. और ये end में कई लोगों के लिए ये learning phase में भी काम आता है. learning phase होता है जब वो 2 साल आप पढ़ रहे हैं. Then next is the performance phase. Performance phase is the phase where you need to appear for the exams, showcase your talent. Learning phase में है gaining of skills and knowledge, right? So learning phase is long term, जो आप करते आ चुके हैं. अब है performance phase, इसमें ये techniques आप लगाइए. पोमोडोरो जो मैंने आपको बताया, आधा घंटा पढ़िए या 45 मिनट पढ़िए if you feel you're comfortable, and then you take a break of 15 minutes, right? When you take a break of 15 minutes, you don't think of any study, you don't keep going back and thinking, no, you just relax your brain. Or you just look at the ceiling, you just lie down, but you don't pick up the phone. Or you can listen to music, or you can go to the kitchen, you can cook. Whatever you like, you do it. You know, because we are not into the habit of doing such things. हम practice नहीं बनाते हैं learning phase में अपनी, तो performance phase में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है. But as of now, I don't think I should be telling you all this, because it's important for me to go along with you and pull you along with me to the destination where we need to go. Whether we are successful or not is a different issue, but at least we'll try. We'll not give up. कोशिश करना हमारा काम है. और एक और saying है इसमें, जो saying तो नहीं, मैं आपको एक कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वेदों में से. यही वक्त है जब आप नचिकेता के बारे में सुनिएगा. नचिकेता जो थे, ये एक कथा उपनिषद होती है हमारी. जैसे मैं वेदों पुराणों से, गाथाओं से हमेशा जोड़ती हूँ अपनी कहानियों को, तो इसमें मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगी. नचिकेता आप सब काफी हद तक जानते होंगे. तो नचिकेता को यमराज ले गए. ये गए यम के पास. अब यमराज जो हैं नचिकेता को ले तो आए, और अब वो पूछने लगा कि भाई ये आत्मा क्या होती है, और ये आफ्टर लाइफ क्या होती है, भाई मृत्यु के बाद आदमी के शरीर का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या मैं दोबारा वापस आऊंगा. यम महाराज ने didn't want to answer. उनको जवाब देना ही नहीं था, बिकॉज वो दे नहीं सकते, और शायद वो अपने राज खोलना नहीं चाहते, ऐसा भी मान लीजिए. पर नचिकेता एकदम अडिग, नहीं आप मुझे बताइए कि ये होता क्या है. यमराज ने सोचा अब इसको मैं कैसे बहलाऊं, तो उन्होंने क्या किया, ही सेड देखो तुम ऐसा करो, बच्चे हो, इन चीजों में मत पड़ो,
तुम अपने लेवल की चीजों पर रहो, तो आप पैसे ले लो, खाना ले लो, धन दौलत ले लो, ऐशो आराम ले लो, आपके माता पिता के लिए ये सब ले लो अगर खुद के लिए नहीं चाहिए। वो बच्चा टस से मस ना हुआ। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ आया हूं, कुछ पता लगाने आया हूं, आप मुझे लालच मत दीजिए, मैं जो ढूंढने आया हूं मैं उसे ढूंढ कर ही जाऊंगा। इस कहानी को मैं सस्पेंस रखूंगी, क्योंकि जब आपके इम्तिहान हो जाएंगे तब मैं आपको इसका नतीजा बताऊंगी, पर तब तक तो शायद आप सब गूगल करके ढूंढ ही लेंगे। बट अगर आप ढूंढ लेंगे खुद, सो इसमें रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। जो मॉरल है, जो तात्पर्य इस कहानी से निकलेगा, सो ये निकलेगा वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं हिला अपने सवालों से, वो वहीं का वहीं स्थिर अडिग खड़ा रहा कि नहीं, ये जान कर ही जाऊंगा। देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितने सारे थे उस वक्त के, डिस्ट्रैक्शंस कुछ और थे, राइट? पैसा चाहिए था, धन दौलत चाहिए थी, ऐशो आराम चाहिए था, वो चीजें हमें अभी भी चाहिए। Probably our mobile phones and our tablets and a lot of other things have replaced a little bit of the money part, but we still distracted. Adults are also distracted, kids are also distracted. So when they be distracted, तो वो नचिकेता की कहानी is relatable to the fact that in spite of those distractions, he could have easily given up and just jumped onto those desires which were available to him so easily. So all those desires are available to us very easily. So as of now, you need to just give up on these desires. ये तो जो पोमोडोरो टेक्निक है, जो 15 मिनट है, आप नचिकेता बन जाइए, डिस्ट्रैक्शंस दूर, राइट? अब ये जो पोमोडोरो टेक्निक है, another part of it or a segment of it is that you do this for 4 times. So you take half an hour, 15 minutes, so it's called 30-15. So another set of 30-15, another 30-15 and the last 30-15. जब आप 2 घंटे, तो हो गए 2 घंटे, आप मान के चलिए पढ़ाई आपकी 2 घंटे की हो गई और ब्रेक आपका 1 घंटे का हो गया. Then you can take a break of complete half an hour. अब ये जो टेक्निक है, आप इसको अब यूज करिए. Keep using it. This is going to do 2 things to you. Parents, teachers, I think you should also know this. I have also noted this down. That is how I apply it on my students, and I did it previously on my own child, and it did wonders. You need to give them a break of half an hour, and after that, what happens is the burnout. जो आपका दिमाग का burnout है, आपको खुद फील होगा that your brain is able to absorb more, right? It's absorbing more. It's you're not feeling that burnout कि अच्छा अब मेरा इतना बचा है, अब मुझे इतना पढ़ना है, how do you go about doing this? नहीं हो पा रहा है. तो ये आपके दिमाग को काफी काम रखेगा. Your nervous system will remain very calm. और इसको लगातार करते रहिए जब तक आप एग्जाम के लिए अपीयर नहीं होते. Don't think of anything else. Don't think of the results. Right now your job is to study. So just keep studying. Don't divert yourself with it, even with the distraction कि क्या होगा. ये insecurity और distraction हम सब में आती है, बहुत natural है. The more we accept it, the easier it becomes for us. So accept it कि मुझे insecure feel होगा, मैं डरूंगा या डरूंगी, पता नहीं क्या होगा. It trickles down from the parent. माँ बाप भी डरे हुए होते हैं, उनका डर बच्चों में आ जाता है और बच्चे के अंदर वो बैठता चला जाता है. And I think from the child again it becomes a cycle, and then this becomes a vicious cycle of circling around, right? So somewhere we need to cut this down. I don't expect kids to do it. I expect the elders to do it. Cut down this anxiety. You cut down your anxiety, your child will remain calm. Second technique is Feynman technique. Feynman technique, he was an American physicist. His name was Richard Feynman. इसको ना explanation technique भी कहा जाता है. मैं ये बहुत यूज करती हूँ और मुझे नहीं पता था कि it's known by this name, because I have been using this on myself ever since I was in school.
तब नाम नहीं पता थे, अब पढ़ना शुरू किया इनके बारे में तो नाम पता चल रहे हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं हम जब पढ़ते हैं बच्चों, तो आप सबको क्या करना है, आप या तो अपने मम्मी पापा किसी को बिठा लीजिए, दोस्त को बिठा लीजिए, कोई नहीं बैठा है तो तकिया ही रख लीजिए, एंड रीड एज इफ यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट, राइट? यू पिक अप अ कंसेप्ट, उसको आप पूरी तरह समझ लीजिए, अपने मन में बोल के कर सकते हैं, जो भी तरह आपको पसंद हो। कई बच्चे बोल के करते हैं, कई घूम घाम के पढ़ते हैं, कई म्यूजिक लगा कर पढ़ते हैं। जो एनवायरमेंट आपको पसंद है, पिक अप दैट एनवायरमेंट, एब्सोल्युटली देयर आर नो बाउंडेशंस ऑन दैट। बट आफ्टर दैट द सेकंड स्टेप इन फेनमैन टेक्निक इज दैट यू टॉक टू द अदर पर्सन एज इफ आप उनको पढ़ा रहे हो, ठीक है? कि आपने अपना एक बार तो पढ़ लिया, अब अगली बार आप उनको पढ़ा रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट है, मैं तो बायोलॉजी का ही दे पाऊंगी आपको, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट्स माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी आई एम गोइंग अ लिटिल टेक्निकल बिकॉज नीड से ही रिलेटेड काफी सारी चीजें मैं पढ़ती आई हूं, तो उसी का नॉलेज ज्यादा है मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या हिस्से होते हैं भाई, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, तो पहले आपने खुद समझ लिया, और जब आप फिर आप बन जाइए टीचर। ये आदत मुझ में काफी है, एक्सप्लेनेशन मेथड, फेनमैन टेक्निक, फिर मैं उसको समझाना शुरू करती हूँ। जब आप दोबारा किसी को समझाना शुरू करते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है, इट जस्ट सेटल्स एंड एब्जॉर्ब्स एंड इट्स इट बिकम्स लाइक अ सेडिमेंट इन योर ब्रेन, सबकॉन्शियसली जाके वो बैठ जाएगी। Because I've been doing it and experimenting on myself and my students and I've got fantastic results. मेरा बच्चा वो नहीं भूलता है कंसेप्ट, बिल्कुल नहीं भूलता है, क्योंकि आसान भाषा में रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए, और डू इट इन एनी लैंग्वेज यू कंफर्टेबल, इंग्लिश, हिंदी, या आपकी अपनी कोई लोकल लैंग्वेज है आप उसमें भी करिए। मुद्दा ये है कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक बार वो समझ जाएंगे ना आप, देन any question given to you, you will have an answer to it because you have, आपने डिसेक्ट कर दिया है उस, मतलब बिल्कुल ही चीर के रख दिया है उस कंसेप्ट को, और फिर खुद समझा है, डाइजेस्ट किया है, फिर उगला है उसे। उगलना माने कि उसको समझाया है किसी को। जब आप ये कर लेते हैं तब क्या होगा, जब समझाते हैं ना हम किसी को, तो हम बहुत सारे गैप्स नजर आने लगते हैं। अच्छा यहाँ अटके, अच्छा वहां पर कोई दिक्कत है, बहुत सारी चीजें आपको खुद ही नजर आएंगी। When you look into the gaps, what will happen is you will know कि अच्छा ये मेरा फंडामेंटल क्लियर नहीं है। Note it down, note it down, number them, keep them aside, right? लिखिए, नंबर डालिए, एक तरफ कर दीजिए। उसके बाद go back again to that concept, read, look into those gaps, look into those gaps. So this is the explanation method. Third one is visualization. बहुत लोग नहीं मानते हैं लेकिन आप करिए, चाहे काम करे या ना करे, प्लीज डू अप्लाई इट। हमारा नर्वस सिस्टम इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रेड है। फ्रेड माने इट्स स्प्रेड आउट। आप देखते हैं वो जो बिजली की तार होती हैं, तो जब वो बिल्कुल छितरा जाती हैं, आप उसका एक एंड काट दीजिए। So when you have multiple wires, copper wires coming out of that, and then you spread it, it's called fraying. तो अभी हमारा nervous system, our entire neurons are frayed. That means they're very fragile. They are on the verge of burning out because we overloaded with information. इतनी ज़्यादा information गई है, लेकिन उस information को संभाल के रखना और फिर उस information को वहाँ पर निकालना, यानी कि रिट्रीवल करना उस इंफॉर्मेशन का, अभी हम सबको मिलकर यही करना है। वी हैव टू सपोर्ट यू इन excelling in these exams. You do your best. You do your best. Whatever be the result. Let's just forget about the result. Let's be performance oriented rather than result oriented. As of now, I want all parents, teachers, mentors, everybody in the house, your elders, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, let's just support them, support our kids so unconditionally कि
उनकी अभी जो मानसिक स्थिति है उसको हम सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड बनाएं ताकि बच्चा रिलैक्स होके एग्जाम दे पाए। रिजल्ट बेस्ड बिल्कुल भी ना रखें। जो होगा अच्छा होगा, देखेंगे। कई मौके आते हैं जिंदगी में, राइट? सो विजुअलाइजेशन में सोने से पहले सोइएगा जरूर, 6 से 8 घंटे जरूर सोइएगा, स्पेशली 1 month, because your brain 1 month before the exam, your brain does need that rest. Don't think that if you keep just pumping in information, it is going to be pulled out of your brain, right? तो अब मैं ये चाहूंगी, ये विजुअलाइजेशन मेथड रात को सोने से पहले आप ये जरूर सोचे that you're doing your best. You've put in your best, you're doing your best, और घबराएं नहीं, मन लगाकर इम्तिहान दें। हम सब बड़े आपके साथ हैं। आप सब पेरेंट्स, टीचर्स, आई वुड लव टू रिक्वेस्ट यू, आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी। घर में बुजुर्ग, आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगी। ये वक्त हमारे बच्चों के लिए काफ़ी नाजुक वक्त होता है। इस वक्त हम उनके साथ रहें और उनका मनोबल बढ़ाएं। अच्छा खाना, अच्छा माहौल, अच्छी स्ट्रैटेजीज एंड probably a very very playful atmosphere in the house. खुश माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चा जैसा भी करे वो देखा जाएगा बाद में, अभी हम उसे परफॉर्म करने दें। To whatever the child has a capacity. Let's not pressurize them कि आपने you need to come to this level. No. Do it to the level you are capable of. But at least try to the level you're capable. आज आप सबको ये सब बताकर और आप सबसे रिक्वेस्ट करके that let's stand by our kids in these times, in the next 2 months, which are very crucial for them. और अंत करना चाहूँगी एक मुहावरे से, मुहावरा कह लीजिए या इंग्लिश में सेइंग कहते हैं, हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। ये आप इस वक्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे जब आप इम्तिहान के पार लग जाएं उस वक्त भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वुड लव and request all children to keep smiling, be happy, be calm. You have worked hard. Do whatever is possible to the best of your ability. Do it honestly. Do it with a lot of sincerity. As I said, learning phase, performance phase, right? The result phase. Your job is the learning phase and the performance phase. Leave the results as of now. Om Namah Shivaya. Thank you for listening to me.